ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری شادی ایک دھوبی سے ہوئی تھی۔ وہ سب کے کپڑوں کے ساتھ میرے کپڑے بھی دھوتا، لیکن ایک بات عجیب تھی کہ جب وہ پڑوسن کے کپڑے لاتا تو اس کی گٹھری باندھ کر چھت پر لے جاتا۔ کہتا اس کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، چھت پر دھوں گا۔ کچھ دن بعد محلے میں شور ہوا، پڑوسن کی لڑکی حاملہ ہے، جبکہ وہ تو غیر شادی شدہ ہے۔ مجھے اپنے شوہر پر شک ہوا۔ جب بھی ایک دن چھپ کر چھت پر دیکھا کہ شوہر کیا کرتا ہے اور مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب میں نے دیکھا کہ میرا شوہر میرا نام زینب ہے، میری عمر 20 سال ہے۔ میں ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ جب میں پیدا ہوئی تو میرے والد اور میری اماں بہت خوش تھے۔ انہوں نے مجھے بہت پیار سے پالا۔ جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ ابا کے انتقال کے بعد اماں نے نوکری شروع کر دی، کیونکہ اماں پڑھی لکھی بھی تھی۔ میری دادی نے کہا ہم ان کے پاس چلی جائیں، مگر اماں نہیں مانی، کیونکہ اماں کی اور دادی کی ہمیشہ ہی لڑائی ہوتی تھی۔ اس وجہ سے اماں نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ جب میں بڑی ہوئی تو میں نے اماں کو بہت کہا کہ وہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارا خیال رکھیں گے، ہم ماں بیٹی کیا کیا کریں گی، مگر وہ نہ مانی اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں جانا نہیں چاہتی ہوں، اپنی دادی کے پاس تم چلی جاؤ، مگر وہ نہیں جائیں گی۔ ان کی بات سن کر میں نے کہا میں بھلا آپ کے بنا کہیں اور جا سکتی ہوں؟ مجھے بھی پھر کوئی شوق نہیں کسی اور کے ساتھ رہنے کا، میں بھی پھر آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، میں نے صاف صاف کہہ دیا۔ اماں میری بات سن کر پرسکون ہو گئیں اور میں بھی پرسکون ہو گئی کہ چلو اگر اماں نہیں جانا چاہتی تو اس میں بھی کوئی بات ہوگی جس وجہ سے وہ نہیں مانی۔ رات کے وقت میں کمرے میں بیٹھی ہوئی موبائل استعمال کر رہی تھی۔ اچانک اماں کمرے میں آئیں اور مجھے کہنے لگیں تم کالج کیوں نہیں جاتی؟ میں نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اماں بس اب اور نہیں پڑھا جاتا، گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، پڑھائی نہیں کی جاتی مجھ سے۔ میں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ اماں کہنے لگی کیا ہو گیا ہے؟ اگر پڑھائی نہیں کرو گی تو اور زندگی میں کیا کرو گی؟ میں نے کہا اماں کچھ بھی کر لوں گی، مگر مجھ سے پڑھائی نہیں ہوتی۔ اماں کہنے لگیں کہ 12 جماعتیں پڑھی ہو تم، بس آج کل اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، تم مہربانی کرو اور اپنی پڑھائی جاری رکھو، ورنہ میں نے تمہاری شادی کر دینی ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے کہا کر دیں شادی، آج بھی کرنی ہے کل بھی کرنی ہے۔ میری بات سن کر اماں کہنے لگی ہاں بڑی جلدی ہے نا تمہیں شادی کی، اس وجہ سے پڑھائی چھوڑ دی ہے۔ اماں کی بات سن کر مجھے ہنسی آئی۔ میں نے کہا اماں مجھے پڑھنا نہیں ہے، میں نے بس یہ بات کی ہے، لیکن شادی کی بات آپ نے خود کی ہے، بے شک میری شادی نہ کریں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میری ایسی باتیں سن کر اماں کو غصہ آ جاتا تھا۔ اماں غصے میں کمرے سے باہر چلے گئیں۔ میں اب پڑھنا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی میں گھر سے نکلنا چاہتی تھی۔ مجھے گھر سے نکلتے ہوئے بہت ہی عجیب لگتا تھا۔ ہر کسی کی مجھ پر ایسے نظر ہوتی تھی جیسے نہ جانے میں کوئی چیز ہوں۔ میں بس اب گھر میں ہی رہنا چاہتی تھی۔ میں اگر اماں کو بتا دیتی تو اماں نے پریشان ہو جانا تھا، اور میں جانتی تھی ہر کوئی مجھے ایسے کیوں دیکھتا ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا اور ہر کسی کو کھلی چھوٹ مل جانی تھی۔ اس وجہ سے میں گھر سے نکلنا نہیں چاہتی تھی۔ اگلے دن میں کچن میں کام کر رہی تھی، اماں گھر پر نہیں تھیں۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا اور جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے ایک عورت کھڑی ہوئی تھیں۔ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا، وہ پیار سے مجھ سے پوچھنے لگیں بیٹا آپ کی اماں گھر پر ہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور انہیں اندر آنے کا کہا۔ وہ اندر آ گئیں اور مجھے کہنے لگیں انہوں نے میری اماں کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے کہا تھوڑی دیر آپ انتظار کر لیں، ابھی اماں آ جاتی ہیں۔ وہ میری بات سن کر وہیں پر بیٹھ گئیں۔ میں نے انہیں پانی دیا، اتنے میں اماں بھی آ گئیں۔ اماں ان کے پاس بیٹھی تو میں کچن میں آ گئی۔ جب وہ عورت گئی تو میں نے اماں سے حیرت سے پوچھا یہ عورت کون تھی؟ میں نے آج سے پہلے تو اس عورت کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اماں کہنے لگی یہ تمہارے رشتے کے لیے آئی تھی اور تمہارا ہاتھ مانگ رہی ہیں اپنے بیٹے کے لیے۔ میں حیرت سے ان کے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ عورت تو مجھے بہت اچھی لگی تھی، ڈیسنٹ سی پیاری سی عورت تھی۔ میں سوچنے لگی اس کا بیٹا بھی ایسا ہی ہوگا، پیارا سا۔ اماں کی طرف دیکھ کر مجھے تو شرم آ گئی۔ میں نے کہا اماں رشتہ میرا آپ نے کرنا ہے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اماں کہنے لگیں تمہاری مرضی تو جانی ہی ہوگی نا۔ میں نے کہا اماں مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ میں یہ کہہ کر کمرے میں آ گئی۔ اس کے بعد چند دن بعد ہی میرا رشتہ طے ہو گیا۔ حامی تو میں نے خود ہی بھری تھی،
मगर मैंने अम्मा से लड़के के बारे में कुछ भी नहीं पूछा था और ना ही अम्मा ने मुझे बताया था। मैंने सोचा जैसा भी होगा अच्छा ही होगा। आखिर को अम्मा ने जो पसंद किया है, मैं बस उसे एक बार ही देखना चाहती थी। न जाने वो कैसा होगा। मैं हर बार ये सोचती हुई कि प्यारा सा बिजनेसमैन होगा, मगर मुझे क्या मालूम था जिंदगी मेरे साथ क्या करने वाली है। मंगनी हुई, उसके कुछ अरसे बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मैं तो बहुत खुश थी, अपनी हर चीज़ पसंद से ली। अम्मा मुझे कहने लगी, पहली लड़की देखी है जो अपनी शादी पर खुश है। मैंने कहा, अम्मा सारी लड़कियां खुश होती हैं, बस कुछ जाहिर करती हैं अपनी खुशी को और कुछ छुपी रुस्तम होती हैं। मेरी बात सुनकर अम्मा कहने लगी, हाँ तुझे बड़ा पता है ना। मैंने कहा, हाँ तो और क्या अम्मा, मुझे आपसे ज़्यादा पता है। आपको नहीं पता कुछ भी। क्या आप अपनी शादी पर खुश नहीं थीं? अम्मा खामोश हो गईं। मैंने कहा, क्या हुआ है अम्मा? अम्मा कहने लगी, अपनी शादी पर बस मैं ही खुश थी या फिर तुम्हारे अब्बा खुश थे? मैंने कहा, क्यों भाई, बाकी घर वाले खुश नहीं थे क्या? अम्मा ने नफ़ी में सर हिला दिया और कहने लगी, और कोई भी खुश नहीं था, बस वो तुम्हारे अब्बा की ज़िद पर शादी हुई थी। मैं अम्मा की बात सुनकर हंसते हुए कहने लगी, मतलब आपने भी अब्बा के साथ पसंद की शादी की थी? कितनी शरीफ लगती हैं आप। अम्मा मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगीं। मैंने कहा, अम्मा मेरी शादी हो जाएगी, आप अकेली हो जाएंगी। अम्मा कहने लगी, नहीं मैं अकेली नहीं होती, मैं भी तुम्हारी दादी को अपने पास ले आऊँगी। वैसे भी उन्हें तुम्हारी चची अब अपने साथ नहीं रखना चाहते। मैंने हैरत से कहा, क्यों भाई, क्यों नहीं रखना चाहते? अम्मा ने कहा, ये उनका मसला है, हमारा नहीं, मैं रख लूँगी उन्हें अपने साथ। अम्मा की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अम्मा को दादी ने इतना कुछ कहा, इतने जुल्म भी किए थे, फिर भी अम्मा को दादी का कितना ख्याल था। मैंने गहरी सांस ली और अपनी अम्मा को शादी वाला जोड़ा दिखाने लग गई। आज मेरी मेहंदी थी, मगर मैंने अभी तक इस लड़के को नहीं देखा था जिसके साथ मेरी शादी होने वाली थी। मुझे बड़ा तजस्सुस हो रहा था इस लड़के को देखने का। मैं उसे देखना चाह रही थी, न जाने वो कैसा दिखता होगा। इतना तो मुझे पता था कि उसने मुझे देखा हुआ है, क्योंकि उसकी अम्मा मेरी तस्वीर ले गई थी। उसने बोला था मेरे बेटे ने देखनी है, अम्मा ने दे दी थी। आज मेहंदी थी और मैंने अम्मा से कहा कि मुझे भी लड़के की तस्वीर दिखा दें। अम्मा मुझे गुस्से में कहने लगी, नहीं तुझे आज ही याद आना था कि तुमने लड़का देखना है, अब भैया मैं उसकी तस्वीर कहाँ से लाऊं? मैंने कहा, अच्छा अम्मा ये बता दे कैसा दिखता है? अम्मा कहने लगी, वो धोबी है। अम्मा की बात सुनकर मैं आंखें फाड़े उन्हें देखने लगी। जैसा मैंने उसे सोचा हुआ था, इस पर तो अम्मा ने धोबी का नाम लेकर पानी फेर दिया। अब तो मेरे जहन में एक बदसूरत सा लड़का आ रहा था, न जाने वो कैसा होगा। अब मुझे मज़ीद तजस्सुस हो रहा था। मैंने गुस्से में कहा, अम्मा आप मेरी शादी एक धोबी के साथ कर रही हैं। अम्मा कहने लगी, क्या हो गया है? तुमने खुद ही कहा था तुम्हें कोई मसला नहीं। मैंने कहा, अम्मा आप तो देख लेती ना, धोबी के साथ मेरी शादी। अम्मा गुस्से में कहने लगी, अब आगे एक लफ्ज़ भी मत बोलना। क्यों धोबी इंसान नहीं होते क्या, या फिर वो हैवान होते हैं? खुद ही ज़रा कुछ सोच लो। मैंने गुस्से में कहा, क्यों धोबी के साथ रिश्ता किया था? पता नहीं क्या हो गया, अम्मा ने मुझे गुस्से में चुप करवा दिया और कमरे से बाहर चले गई। मैं वहीं पर बैठ गई। अगले दिन मैं ब्याह कर ससुराल आ गई। मेरी सारी नंदें शादीशुदा थीं और सभी बहुत प्यारी थीं, मगर मेरे जहन में तो बस एक धोबी ही बैठ गया था। न जाने वो कैसा होता, अभी तक मैं उसे देख नहीं पाई थी। थोड़ी देर बाद मुझे कमरे में लाकर बिठा दिया गया। मैं कमरे में बैठी तो अचानक मेरी नज़र सामने दीवार पर लगी तस्वीर पर गई, जो कि एक लड़की की थी जिसके लबों पर मुस्कुराहट थी। मैं उसे देख रही थी, इतने में मेरा शौहर कमरे में आया। उसे देखते ही मैं एकदम से बेड से उतरी। वो कहने लगा, क्या हो गया है? मैंने हैरत से कहा, क्या आप मेरे शौहर हैं? वो कहने लगा, जाहिर सी बात है, शौहर हूँ तो कमरे में आया हूँ। वो बहुत खूबसूरत था, वो तो कहीं से भी धोबी नहीं लग रहा था। वो कहने लगा, सुकून से बैठ जाएं, ऐसे उछल क्यों रही हैं? मैंने उसकी बात सुनकर सर को नफ़ी में हिलाया और वहीं बेड पर बैठ गई और वो मेरे पास आकर मुझसे बातें करने लग गया। मैंने गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं था कि आप ऐसे होंगे। वो कहने लगा, क्यों मेरे सर पर सींग होने थे क्या? वो अभी मुझसे बात ही कर रहा था, अचानक उसके मोबाइल पर मैसेज और कॉल आने लगी। वो एकदम से परेशान होकर उठा और साइड पर गया। उसकी आवाज़ मुझ तक पहुंच रही थी। वो किसी को कुछ समझा रहा था, साथ वो परेशान भी था। थोड़ी देर बाद वो मेरी तरफ आया और कहने लगा, तुम चेंज कर लो,
मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे सोना है। मैं उसकी तरफ हैरत से देखे जा रही थी। वो एकदम से कैसे बदल गया था मेरे साथ। किसकी कॉल थी? मैं वहाँ बेड से उठी तो वो औंधे मुँह लेट गया। मैं वहीं ही रात गए तक बैठी रही, मगर इसने मुझसे फिर कोई बात न की। मैंने देखा उसका न जाने रात के किस पहर तक मोबाइल बजता रहा, मैसेज कॉल्स आती रहीं, मगर वो सोया रहा और मुझ में इतनी हिम्मत ना हुई कि मैं उसे जगा कर बता सकूं कि उसके मोबाइल पर कॉल आ रही है, और ना ही मैंने खुद कॉल उठाई। मुझे एहसास ही ना हुआ मैं कब सो गई। सुबह मुझे बातों की आवाज़ आने लगी। मेरा शौहर किसी के साथ बातें कर रहा था और कह रहा था पागलों वाली बातें ना करो। मैंने भी कुछ खुशी से नहीं किया। मैं अपने घर वालों को अच्छी तरह जानता हूँ, वो न जाने किसके साथ लगा हुआ था। जब उसने मेरी तरफ देखा एकदम से कॉल कट कर दी और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखने लग गया। मैंने कहा, इतनी सुबह सुबह किसके साथ झगड़ा कर रहे थे? मेरी बात सुनकर वो घबरा गया और नफ़ी में सर हिलाता हुआ कहने लगा, किसी के साथ नहीं, वो एक दोस्त था। मैंने इस बात में सर हिला दिया और फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद मैं फ्रेश होकर आई तो सामने वो बैठा हुआ था। मुझे कहने लगा, मैं नाश्ता कर चुका हूँ, अभी अम्मा आपके लिए लेकर आती हैं। मैंने उसकी बात सुनकर इस बात में सर हिला दिया। मुझे वो बहुत ही अजीब किस्म का आदमी लग रहा था। चंद दिन गुजरे तो वो अपने काम पर लग गया। मुझे पहले लगा था अम्मा ने शायद मेरे साथ मजाक किया है कि वो धोबी है, मगर वो तो सच में धोबी था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो धोबी होगा। मैं किचन में काम कर रही थी, पास मेरी सास भी बैठी हुई थी। मैंने तजस्सुस से उनकी तरफ देखते हुए कहा, आंटी आपका बेटा पढ़ा लिखा नहीं है क्या? वो हैरानगी से मेरी तरफ देखकर कहने लगी, क्यों, मेरा बेटा अनपढ़ लगता है क्या? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वो ही तो पूछ रही हूँ, वो काफ़ी पढ़े लिखे लगते हैं, मगर इनका काम जो है वो तो। मैंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मेरी सास मेरी तरफ देखकर कहने लगी, बेटा मर्जी का मालिक है, जो दिल में आता है वही करता है। हमने तो बहुत पढ़ाया लिखाया और कहा अच्छी नौकरी करेगा, मगर इसकी अपनी मर्जी। उसने कह दिया मुझे तो धोबी बनना है। सब खानदान वालों ने इतनी बातें बनाई, लड़का इतना पढ़ लिख कर लोगों के कपड़े धोएगा, मगर हम क्या कर सकते हैं, एक इकलौता बेटा है हमारा। इनकी बात सुनकर मुझे हैरानगी हुई। पहला पढ़ा लिखा लड़का देखा था जिसे ऐसे काम करने का शौक था। न जाने इस काम में ऐसा क्या था। मुझे तो तजस्सुस हो रहा था। उसने नौकरी भी नहीं की, ना ही कोई बिजनेस किया, बल्कि ये छोटा सा काम क्यों कर रहा है। मुझे तो हैरानगी हो रही थी, और उसे ऐसा काम करते हुए शर्म भी नहीं आती। मतलब वो एक लड़का होकर कपड़े धोएगा। मेरी सास कहने लगी, घर में भी सबके वही कपड़े धोता है, और अगर मना कर दो तो झगड़ने लग जाता है। मैं तो खुद उससे बहुत परेशान हूँ। मुझे तो लगता था कि उससे कोई शादी भी नहीं करेगा। मैं उनकी बात सुनकर मन ही मन में सोचने लगी, अगर मुझे पहले पता चलता तो कौन सा मैंने करनी थी ऐसे पागल इंसान से शादी। वो कोई पागल ही लग रहा था। ऐसे काम पागलों के ही हो सकते हैं। एक अक्लमंद आदमी तो ऐसे करने से रहा। रात के वक्त मैं कमरे में बैठी हुई थी। मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ। मैंने उसके मुंह की तरफ देखा और कहा, लगता है आज कुछ ज़्यादा ही कपड़े थे जो आप धो धो कर थक गए हैं। वो मेरी तरफ देखकर हंसते हुए कहने लगा, हाँ तो और क्या, तुम औरतों को तो पता ही होगा कितना मुश्किल काम होता है। मैं उसके हुलिये पर नज़र डालने लगी। कहीं से वो थका हुआ तो नहीं लग रहा था, और चेहरा भी फ्रेश था, जैसे कुछ भी ना किया हो। मैंने गहरी सांस ली और कहा, बहुत ही कोई तुम पागल किस्म के इंसान हो। मेरी बात सुनकर वो एकदम गुस्से में आ गया और कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल कहने की? नहीं हूँ मैं पागल। अगर मुझे पागल कहा तो अपनी हालत की तुम खुद जिम्मेदार होगी। मुझे पागल कर लेना। वो गुस्से में चिल्लाता हुआ कहने लगा। मुझे बहुत उससे डर लगने लगा। मैंने इतनी बड़ी बात नहीं की थी जितना उसे गुस्सा आ गया था, जैसे वो चिढ़ रहा था। मैंने कहा, क्या हो गया है? मैंने मजाक किया है। वो कहने लगा, आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मुझे तो इसकी बातें सुनकर ही गुस्सा आने लगा। अब तो मुझे वहम हो गया था कि वो एक नंबर का पागल इंसान है। जैसे उसने गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया था, हद हो गई थी। वो कमरे से बाहर निकल गया। मैंने गुस्से में अम्मा को कॉल की। अम्मा ने जैसे ही कॉल पिक की, मैंने गुस्से में कह दिया, क्यों पागल के साथ मेरी शादी कर दी? एक नंबर का पागल इंसान है। अम्मा कहने लगी, क्या हो गया है, क्या कर दिया है उसने जो तुम ऐसे कह रही हो? अम्मा की बात सुनकर मैंने गुस्से में कहा, वो पूछे उसने क्या नहीं किया। मैंने मजाक में कहा, पागल, और वो मुझसे ऐसे पागलों की तरह झगड़ने लग गया।
کہ मेरी बात सुनकर अम्मा कहने लगी, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तुमने गलत बात की उसके साथ, वो तुम्हारा शौहर है। मैंने हैरानगी से कहा, वो मेरा शौहर है तो फिर ऐसे बोलेगा। मैंने गुस्से में कॉल कट कर दी। मुझे तो इस इंसान पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। रात का न जाने कौन सा पहर हो गया था, मगर वो अभी तक कमरे में नहीं आया था। मैं गुस्से में कमरे से बाहर निकली और देखा वो छत से नीचे आ रहा था। उसके हाथ में कोई दवा वाली बोतल थी। मुझे हैरानगी हुई, वो छत पर कहाँ से दवा लेकर आ रहा था। मैं उसकी तरफ गई और उससे संजीदगी से पूछा, छत पर गए थे? वो मेरी तरफ देखकर हैरानगी से कहने लगा, जहाँ भी गया था आपको कोई प्रॉब्लम है? मैंने कहा, ये आपके हाथ में क्या है? वो मेरे हाथ में पकड़ा कर कहने लगा, आप देख लें, मेडिसिन है, सर में पेन हो रही थी तो इसीलिए ली हैं। मैंने हैरानगी से कहा, तो फिर ये आप छत से क्यों लाए हैं? वो कहने लगा, कितने सवाल करती हो, छत पर बने कमरे में पड़ी हुई थी तो उठा लाया हूँ। हर बात पर शक करना तुम औरतों का बहुत बड़ा मसला है। इसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तुम लोगों का मसला होता होगा, तुम मर्द होते ही ऐसे हो कि औरतें तुम पर शक करें। वो हंसते हुए कहने लगा, अच्छा अच्छा, अब बस करो, ज़्यादा हमारी इज्जत अफजाई मत करना। वो ये कहकर रुका नहीं और वहाँ से चला गया कमरे की तरफ। मैं हैरान थी, पता नहीं इससे क्या मसला था। कभी वो कुछ होता था तो कभी वो कुछ हो जाता था। मैं गुस्से में कमरे में आई, मगर मेरे आते ही वो सो भी चुका था। मुझे गुस्सा आ गया, मुझे उससे बात करनी थी और वो तो मुझसे दूर दूर ही भागता था। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा। अगले दिन वो सुबह के वक्त मेरे कपड़े इकट्ठे कर रहा था। मैंने गुस्से में कहा, ये क्या कर रहे हैं? वो कहने लगा, धोने के लिए जाना है। मैंने कहा, नहीं, मैं धो लूँगी। वो कहने लगा, क्या हो गया है, मेरा ये काम है तो मैं साथ ही धो दूँगा। और भी इसके पास बहुत सारे कपड़े थे। वो लेकर बाहर की तरफ चला गया। इर्द गिर्द के काफ़ी लोग कपड़े धोने के लिए दे जाते थे। वो लेकर बाहर चला जाता था और धोकर वापस लाता था। आज वो आया तो उसके हाथ में कुछ कपड़े थे। मैंने हैरानगी से पूछा, ये किसके कपड़े हैं और छत पर क्यों ले जा रहे हैं? वो मेरी बात सुनकर थोड़ा परेशान हुआ और कहने लगा, ये वो साथ वाली हमसाई के कपड़े हैं। दरअसल इनमें से बदबू आती है तो मैं छत पर धो देता हूँ। मैंने कहा, लाएं, मैं धो देती हूँ। वो नफ़ी में सर हिलाता हुआ कहने लगा, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम जाकर अपना काम करो। मैंने कहा, वैसे तो ये काम मर्दों का भी नहीं होता। मेरी बात सुनकर उसने गुस्से में मुझे देखा। मैं वहाँ से अपने कमरे में आ गई, मगर मुझे हैरत हो रही थी, उसके कपड़े क्यों नहीं धोए जा सकते थे जहाँ पर बाकियों के धुलते थे। मुझे तजस्सुस भी हो रहा था। मैं जानना चाहती थी आखिर ऐसा वो क्यों कर रहा है। मैं उसका इंतज़ार करती रही। वो रात को कमरे में आया। मैंने संजीदगी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, भाई कमाल है, बड़ी जल्दी कपड़े धुल गए। मेरी बात सुनकर वो हंसते हुए कहने लगा, नहीं, मैं कपड़े धोकर न छत पर ही बैठ गया था, सोचा खुश्क हो गए तो इनके घर ही दे दूंगा। मैंने हैरत से उसे देखकर कहा, वाह भाई, आप भी बड़े अक्लमंद हैं। मेरी बात सुनकर वो हंसते हुए कहने लगा, बस कभी गरूर नहीं किया अक्लमंद होने का। हम दोनों हंसने लग गए। वो कहने लगा, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने लगा हूँ। मैंने कहा, सो जाओ, मैंने कब मना किया है। मैं कमरे से बाहर चली गई और छत पर आ गई। जब मैं छत पर आई तो मुझे अचानक से आवाज़ आई, तुम फिर आ गए। मैंने हैरानगी से उधर देखा तो एक लड़की थी। जब उसने मेरी तरफ देखा तो हंसती हुई कहने लगी, आप फिर आ गई। मैंने कहा, क्यों, मैं तो पहले नहीं आई, मैं तो आई ही अब हूँ। वो कहने लगी, क्या हो गया है मुझे लगा पहले भी आप ही थी। मुझे वो लड़की बड़ी अजीब लग रही थी। बज़ाहिर तो वो मुझसे बातें कर रही थी, मगर मुझ पर जैसे गुस्सा आ रहा हो उसे ऐसे वो मुझसे बातें कर रही थी। मैंने तंग आकर कहा, कि आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है? वो कहने लगी, मुझे भला आपसे क्या प्रॉब्लम होगी? वो नाक चढ़ा कर बोली। मुझे उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस वजह से ही ऐसी बातें कर रही हैं। वो कहने लगी, मेरा दिमाग न खाओ, मैं पहले छत पर थी, फिर तुम आई। मैंने हैरानगी से कहा, आप में बात करने की तमीज़ नहीं है? वो नफ़ी में सर हिलाती हुई कहने लगी, नहीं है तमीज़, जाएं आप यहाँ से, पहले ही बहुत जहर लगती हैं आप मुझे। इसकी बात सुनकर मैंने कहा, तो यही तो मैं भी पहले आपको कह रही थी, मैं आपको इतनी बुरी क्यों लगती हूँ? मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा। वो गुस्से में नीचे चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे बहुत ही कोई अजीब किस्म की वो लड़की लगी थी। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी। अचानक से मुझे उस लड़की की आवाज़ आई। मैंने किचन से बाहर झांक कर देखा तो वो मेरी सास के पास बैठकर बातें कर रही थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं किचन से बाहर निकली तो वो मेरी तरफ देखकर
मेरी सास को कहने लगी, आपकी बहू में तमीज़ तो है नहीं। मैंने आंखें फाड़े उसकी तरफ देखा और कहा, बहन मैंने क्या कहा है तुझे जो मुझ में तमीज़ नहीं है। मेरी सास ने मुझे अंदर जाने का इशारा किया। मैं उसे घूरती हुई कमरे में आ गई तो बड़ी देर बाद मेरी सास कमरे में आई और कहने लगी, बेटा वो लड़की कुछ बोलती है तो तुम आगे से कुछ मत बोला करो। मैंने हैरानगी से कहा, क्यों भाई, वो मुझे कुछ भी कहे तो मैं खामोश हो जाऊं? मेरी सास कहने लगी, ये लड़की थोड़ी पागल सी है, मतलब इसके घरवाले से बहुत प्यार करते हैं, हर वक्त बीमार रहती है तो इस वजह से इसे कोई कुछ नहीं कहता। वैसे बहुत अच्छी है, देखना फिर कभी मिलोगी तो बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी। अपनी सास की बातें सुनकर मैंने कहा, अच्छा फिर तो मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था बेचारी को। अब मुझे भी शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, शाम के वक्त मेरा शौहर आया और छत की तरफ जाने लगा। मैं उसकी तरफ देखने लगी कि वो कहाँ जा रहा है। उसने मुझे अपने पीछे आने से मना किया। मैं अपने कमरे की तरफ चली गई। जब वो छत से नीचे आया तो मैंने संजीदगी से पूछा, आज फिर हमसाई के कपड़े धोने गए थे? उसने मेरी बात का जवाब ही न दिया। मैंने गहरी सांस ली और कहा, नहीं करनी बात तो ना करें, वैसे मेरी गलती तो बता दें जिसकी वजह से मुझसे बात नहीं कर रहे। इसने फिर भी कोई जवाब न दिया। मैंने गुस्से में कहा, नहीं करनी बात तो बाहर में जाएं। मेरी बात सुनकर वो गुस्से में कहने लगा, शौहर हूँ तुम्हारा, तमीज़ से बात करो। मैं भी गुस्से में थी। मैंने कह दिया, नहीं करूँगी तमीज़ से बात। वो मुझे थप्पड़ मारने लगा, फिर उसका हाथ हवा में ही रुक गया। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। वो मतलब मुझ पर हाथ उठाने की हद तक आ गया था। मैं कमरे में जाने लगी। उसने मेरा बाजू पकड़ लिया और सॉरी करने लगा। मैंने गुस्से में कहा, फिर मारते ना मुझे, मारा क्यों नहीं? वो कहने लगा, सॉरी यार, मुझे पता नहीं चला, बस गुस्सा आ गया था। मैंने कहा, तो फिर ठीक है, ये गुस्सा किसी और को दिखाया करें, मुझे मत दिखाना। मैं गुस्से में उसके पास से चली गई और अपने कमरे में आकर अपने आंसू साफ करने लगी। मेरी सास मुझे कहने लगी, क्या हुआ है? मेरा तो दिल किया मैं सब कुछ बता दूं, मगर फिर मैं खामोश हो गई। मुझ में हिम्मत ना हुई उन्हें कुछ बताने की, लेकिन मुझे अब डर भी लग रहा था। वो मुझ पर हाथ भी उठा सकता था अगर इस हद तक चला गया था। अगले दिन मेरी सुबह आँख खुली तो मेरा शौहर कमरे में मौजूद नहीं था। मैं हैरानगी से इर्द गिर्द देखने लगी। वो इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकता है? मैं कमरे से बाहर आई तो वो छत से नीचे उतर रहा था। मुझे हैरानगी हुई, इसका इतनी सुबह सुबह छत पर क्या काम हो सकता था जो वो इतनी जल्दी छत पर गया था। इसके उतरने के बाद मैं छत पर गई। ठंडी हवा चल रही थी और हमसाई भी खड़ी हुई थी। मैंने उससे कहा, इतनी सुबह सुबह छत पर क्या कर रही हो? वो हंसते हुए कहने लगी, वैसे ही अच्छा मंजर है ना, छत पर आ गई, वहाँ हवा चल रही है। आज वो अच्छे मूड में थी। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ वो तो मुझे भी नज़र आ रहा है, कितनी अच्छी हवा चल रही है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो भी मुस्कुरा दी। मैं छत से नीचे आ गई, मगर वो लड़की मुझे ठीक नहीं लग रही थी। मुझे तो अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मेरा शौहर कपड़े लेकर चला गया। मैं सारा दिन कामों में मसरूफ़ रही। शाम के वक्त मैं कमरे में आई। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और सोच लिया था आज अपने शौहर को कमरे में भी नहीं आने दूंगी। उसने सही तमाशा बनाया हुआ था मेरे साथ। कोई मेरी बात भी नहीं सुनता था, कोई कुछ बोलता भी नहीं था। बहुत ही अजीब हो गया था, पागल किस्म का। मुझे तो वह पागल ही लगता था। इसकी बातें, उसकी हरकतें भी पागलों वाली थीं। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरा शौहर कहने लगा, दरवाज़ा खोलो। मैंने गुस्से में कहा, मैंने दरवाज़ा नहीं खोलना। वो कहने लगा, क्या हो गया है, क्यों नहीं खोलना? मैं बाहर खड़ा हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है, दरवाज़ा खोलो। इसकी बात सुनकर मैंने दरवाज़ा खोला। वो सामने खड़ा हुआ था। मैंने गुस्से में कहा, बोलो क्या बात करनी है? वो कहने लगा, तुम मुझसे किस तरह बात कर रही हो? मेरे कमरे में मुझे नहीं आने दे रही, मतलब कमाल हो गया है। वो हंसते हुए कहने लगा। मैंने गुस्से में कहा, ये तुम हर बात पर हंसते क्यों हो? वो कहने लगा, अच्छा अंदर कमरे में आओ, एक बात करनी है तुमसे। मैं उसके पास आई और मैंने सफाई से इनकार कर दिया उसकी बात सुनने से। वो कहने लगा, ठीक है, बाद में कुछ मत कहना। मैंने भी गुस्से में कह दिया, कुछ नहीं कहूँगी। पहले जो कुछ करते हैं, कभी आपको कुछ कहा है जो अब कहूँगी? मैंने संजीदगी से कह दिया और वहाँ से उठकर बाहर आ गई। मेरी आंखें दर्द कर रही थी नींद की वजह से, मगर मुझे अभी सोना नहीं था, मैं जागना चाहती थी। मैं काफ़ी रात तक बिला वजह ही जागती रही।
مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیوں جاگ رہی ہوں، میرے جاگنے کا مقصد کیا تھا، بے مقصد ہی کیوں جاگے جا رہی ہوں۔ میں کافی دیر بعد کمرے میں گئی اور جا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میری آنکھ لگ گئی۔ پھر صبح کے وقت میری آنکھ کھلی، میں فریش ہو کر باہر آئی۔ میرا شوہر جا چکا تھا کام پر۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کاموں سے تھک کر میں آ کر بیٹھی تو اتنے میں ایک عورت میری ساس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں بھی وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ عورت میری ساس کو بتانے لگی کہ ساتھ والوں کی لڑکی حاملہ ہے اور اس کی ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی۔ میں منہ کھولے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ وہ تو بہت معصوم سی لگ رہی تھی، ہماری ہمسائی۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ بس میں منہ کھولے دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے بہت ہی حیرت ہو رہی تھی، وہ بالکل بھی مجھے ایسی نہیں لگی تھی۔ میں گھبراتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر آ گئی۔ مجھے تو اپنے شوہر پر شک ہو رہا تھا۔ جب وہ چھت پر ہوتی تھی تبھی میرا شوہر بھی چھت پر ہوتا تھا۔ میں سنجیدگی سے سوچنے لگی، کچھ تو تھا، نہ جانے میرا شوہر مجھ سے کیا چھپا رہا تھا۔ رات ہوئی تو میرا شوہر گھر آیا، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اس سے کچھ پوچھ سکوں۔ میں نے 2-3 بار کوشش کی اس سے پوچھنے کی، مگر نہ پوچھ سکی۔ آخر کار میں نے گہری سانس لی اور سو گئی۔ اگلے دن پھر سے میرا شوہر پڑوسن کے کپڑے لایا اور چھت پر لے کر چلا گیا۔ شام کا وقت تھا جب کافی وقت گزر گیا، رات ہو گئی۔ میں اپنے شوہر کے پیچھے چھت پر گئی اور چھپ کر دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی۔ میرا شوہر اسے چپ کروا رہا تھا پڑوسن کو، اور وہ وہیں بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے کہا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ لڑکی ایک دم سے ڈر گئی اور میرے شوہر کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے غصے میں کہا، چھوڑو میرے شوہر کو۔ وہ ڈری ہوئی اس کے ساتھ بچوں کی طرح لگی ہوئی تھی، مگر میں اسے بار بار کہہ رہی تھی، اٹھو میرے شوہر کے پاس سے۔ میرے شوہر کو ایک دم سے غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگا، بیوی ہے یہ میری۔ اپنے شوہر کے یہ الفاظ سن کر مجھے نہ جانے کیا ہوا، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میں روتی ہوئی نیچے آ گئی، کمرے میں آ کر بیڈ پر اوندے منہ لیٹ گئی اور رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر آیا اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے غصے میں کہا، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ وہ کہنے لگا، شوہر ہوں تمہارا۔ میں نے کہا، اس کے بھی تو ہے نا۔ میرے شوہر کہنے لگا، اسے تو محبت کرتا ہوں۔ میں نے غصے میں کہا، کرتے ہیں محبت تو پھر اسی کے پاس جائیں۔ وہ کہنے لگا، نہیں جاؤں گا اس کے پاس، ابھی تو آیا ہوں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ میرے سامنے بیٹھ کر آنسو صاف کرنے لگا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے غصے میں کہا، تو اگر اس سے ہی شادی کی تھی تو پھر مجھ سے کیوں کی؟ وہ کہنے لگا، جانتی ہو اس کی بہت کم زندگی ہے، اسے برین ٹیومر ہے اور نہیں پتا وہ کب اس دنیا سے چلی جائے۔ ایک دن میں چھت پر ٹہل رہا تھا تو اس سے باتیں کرنے لگ گیا۔ اس نے مجھے اپنی بیماری کے بارے میں بتایا۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ آہستہ آہستہ ہم اچھے دوست بنے، پھر محبت ہو گئی۔ وہ کہتی تھی، میرے گھر والوں نے نہیں مانا کیونکہ میں نے تو مر جانا ہے، اس وجہ سے پھر ہم نے یوں چھپ کر شادی کر لی۔ مگر اب اس کے گھر والوں کو بھی معلوم ہے اور میرے گھر والوں کو بھی۔ اماں کو جب نہیں معلوم تھا تو انہوں نے میری شادی تم سے کر دی تھی۔ اس کی باتیں سن کر میں نے مزید کچھ نہ کہا اور گہری نظر لے کر رونے لگی۔ وہ مجھے چپ کروانے لگا۔ میں نے کہا، تو پھر آپ اس کے کپڑے چھت پر کیوں لے جا کر دھوتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، جانتی ہو میں اور بھی نوکری کرتا ہوں، مگر وہاں پر بس مجھے چند گھنٹے جانا ہوتا تھا، باقی یہ کپڑے وغیرہ میں دھلوا کر دیتا تھا، کبھی خود نہیں دھوئے تھے۔ باقی وقت اس کے ساتھ گزارتا تھا۔ اس کے کپڑے اس وجہ سے گھر لاتا تھا تاکہ چھت پر لے جا کر اس سے مل سکوں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے غصہ تو آیا، مگر میں کچھ نہ کہہ سکی۔ اس لڑکی کی جب بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ مجھے بہت برا لگا اس کے لیے۔ میرا شوہر پہلے تو اداس رہتا تھا، پھر سنبھل گیا اور میرے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا۔